اتنی رحمت، اتنی مغفرت، اتنی عظمت لیے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اگر کوئی لینے والا ہو تو دامن تو بھر سکتا ہے، لیکن رمضان کی رحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ رمضان کی رحمت کبھی اس کے قریب اگر آ جائے تو دور نہیں جا سکتی۔ آخرکار رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی عظمتیں کیوں ہیں، اتنی برکتیں کیوں ہیں، اتنی اس کی رفعتیں کیوں ہیں، تو سنتے چلو۔ تاریخ بتلاتی ہے قرآن کو نازل کیا گیا تو رمضان کے مہینے میں، آقا حسن کی اگر ولادت ہوئی تو رمضان کے مہینے میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر وصال ہوا تو رمضان المبارک میں۔ تاریخ بتلاتی ہے مولائے کائنات پر ایک ظالم نے اگر وار کیا تو رمضان المبارک میں۔ 19ویں رمضان کو مولائے کائنات پر وار کیا گیا تھا۔ ضرب اتنی کاری تھی، ضرب اتنی خطرناک تھی کہ مولائے کائنات 2 دن تک اس کو برداشت کرتے رہے، اور آخرکار 19ویں رمضان پر آپ پر ضرب کاری کی گئی تھی۔ 21ویں رمضان کو آپ نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ رمضان المبارک جو ہے اپنے دامن میں کئی طریقوں سے یعنی کہ اسلام کی تاریخوں کو سمیٹا ہے۔ آؤ ایک لمحے کے لیے چلتے ہیں، اے رمضان تیری عظمتیں اتنی بلند کیسے ہوئیں، اے رمضان تیرا مرتبہ اتنا اعلیٰ کیسے ہوا، اے رمضان تمام 11 مہینوں میں سب سے افضل قرار اس کو اللہ رب العزت نے کیوں دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے، ہمیں رمضان کے حوالے سے ملتی ہے۔ مورخین نے 2 تاریخیں لکھی ہیں، ایک تاریخ میں 17 رمضان ہے اور دوسری تاریخ میں 19 اور 20 رمضان ہے۔ ایک میں 17 اور دوسرے میں 19 اور 20۔ اس پر جملہ دینا وہ کون سی تاریخ ہے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اگر نبی نے کی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں کی۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی نے جنگ بدر کو انجام دیا۔ ایسے ہی نہیں انجام دیا گیا جنگ بدر کو، اللہ کے نبی اگر گلی سے گزر کے جاتے تھے تو پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، بولو سبحان اللہ۔ تحقیق اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ظالموں کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی تھی، ظالم یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ محمد اگر اسی طریقے سے دین کی تبلیغ کرتا رہا تو ایک دن نہ تیرا خدا بچے گا نہ میرا خدا بچے گا۔ ایسا کیا جائے، محمد کو روکا جائے، محمد پہ پابندی لگائی جائے۔ میرے بھائی یہ رمضان ہے، اس رمضان میں دیکھو نبی نے کتنی پریشانیاں اٹھا کر ہمیں اور آپ کو یعنی کہ یہ دین دیا ہے، اس دین کی تبلیغ کی ہے۔ چلتے اس منظر کی طرف ظالموں نے مشورہ کیا، مشن آپریٹ کرتے رہے۔ اگر نبی سے ملتے تھے کہتے تھے جان مانگو گے جان دیں گے، اگر مکان مانگو گے مکان دیں گے، دکان مانگو گے دکان دیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دامن کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن نبی سے پیچھے جب اپنے والوں میں جایا کرتے تھے، جب اپنے آپس میں بات کرتے تھے، یعنی وہ 4 جب مل کر بات کرتے تھے تو کہتے تھے ارے تو افسوس مت کر یار، میں تو اس کے پاس بیٹھا مذاق کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کو شک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں جب یہ بات آئی، رب تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل جا میرے محبوب کو آگاہ کر دے، میرے محبوب کو ہوشیار کر دے، میرے محبوب کو خبردار کر دے۔ جبریل آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے بدلنے کا افسوس مت کیجیے گا، اگر یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ ٹینشن مت لیجیے گا۔ نبیوں کے نبی نے کہا کیوں؟ تو جبریل عرض کرتے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے سننے پر، وعلی ابصارہم اور ان کے لیے خطرناک عذاب و عظیم، خطرناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اتنا سنا تو شادہ ہو گئے۔ اب ان ظالموں کی بھی پکڑ اور کوشش ڈبل بڑھ گئی تھی کہ محمد کو اگر روکا نہیں جائے گا تو تباہی آ جائے گی، محمد کو روکا نہیں جائے گا تو بربادیاں گھر گھیر لیں گی۔ ایسا کرو محمد پر پابندی لگاؤ، محمد کو روکو۔ کوئی کہتا تھا کہ محمد کو قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا تھا محمد کے گھر میں آگ لگا دو، کوئی کہتا تھا محمد کو بستی سے بھگا دو، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ اتفاق سے وہ لمحہ بھی آ گیا جب یعنی کہ 40 آدمی اور 80 آنکھیں میرے نبی کے دربار کو گھیرے کھڑی تھی۔ تو یہی مولائے کائنات ہیں جن کی رمضان المبارک میں شہادت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کو یعنی کہ
जिब्रील खबर देते हैं, या रसूल अल्लाह, आप या मक्के को छोड़कर कहाँ जाओगे, मदीना कैसे जाओगे? 40 आदमी 80 आदमी तो आपके घर को घेरे हुए खड़ी हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे रब का क्या ऐलान है? जिब्रील कहते हैं रब ने तो बता दिया है, मैं मोहम्मद में बताऊंगा आपको, आप निकल जाओगे। तो नबियों के नबी ने सिद्दीक से कहा, अरे यारे मुस्तफा, आज मोहम्मद को अली की जरूरत पड़ रही है, अली के घर जा, अली को बुलाकर मोहम्मद के घर तक ले आ। जिब्रील अमीन आए हैं, सिद्दीक को नबी का हुक्म मिला, सिद्दीक जाते हैं, अली इब्ने अबी तालिब के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अली उठ, मुस्तफा ने बुलाया है। अली उठे, नबियों के नबी की बारगाह में आए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, क्या बात हो गई, इतनी रात को अली को याद किया, अली को इतनी रात में बुलाया? नबियों के नबी कहते हैं, आए अली इब्ने अबी तालिब सुन, अब मोहम्मद का यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, मोहम्मद ये वतन छोड़कर मदीना जाना चाहता है, ऐसा कर तू इस बिस्तर पर सो जा, सुबह यानी जिसकी अमानतें हैं उसकी अमानतों को देने के बाद में मदीने आ जाना। अली कहते या रसूलल्लाह मैं सोऊंगा। तारीख बतलाती वही अली इसी रमजान में शहीद किया गया। अब चलो आगे चलते हैं, अल्लाह के नबी ने वतन को छोड़ा, छोड़ने के बाद दूसरे वतन पहुंच गए, फिर भी जालिमों को तरस नहीं आया, फिर भी जालिमों को खैर ख्वाही यानी भलाई नजर नहीं आई। अब जालिमों ने ये सोच लिया कि मोहम्मद यहाँ से जाने के बाद में डबल काम कर रहा है, अब मोहम्मद पर हमारी पाबंदियां नहीं है, अब मोहम्मद हमारे ज़ेरे करम नहीं है, अब मोहम्मद हमारी मोहताजी से दूर हो गया है, अब मोहम्मद हमारी करीब नहीं है, अब मोहम्मद पर हम पाबंदी कैसे लगाएंगे? ऐसा करो मोहम्मद को जंग के लिए उकसाओ, मोहम्मद का खात्मा करने के लिए कदमों को आगे बढ़ाओ, मोहम्मद के जितने भी चाहने वाले हैं इन मोहम्मद के चाहने वालों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। जालिमों ने मिशन ऑपरेट किया दारुल नदवा के अंदर जो आज तक मौजूद है। तारीख बतलाते हैं मेरे प्यारे, इधर ये मशवरा कर रहे थे, उधर नबी अपने यानी कि चाहने वालों को समझा रहे थे, ऐ लोगों को कुरान की ताकत का ये आलम है, यानी कि कुरान की अजमतें ये हैं, रब तआला का फरमान ये है, दीन ऐसे चला तुम्हें चलना है, ये तुम्हें इस्लाम पर ऐसे गामजन रहना है। इधर से जालिमों का लश्कर चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के से अजीम शान लश्कर आ रहा है। यही रमजान मुबारक का महीना था, इसी रमजान मुबारक के महीने में लश्कर मक्के से निकल गया। चलो मोहम्मद का खात्मा करेंगे, चलो मोहम्मद का मुकाबला करेंगे, चलो मोहम्मद का सफाया करेंगे। इधर से जालिम जा रहे हैं, उधर अल्लाह के नबी मदीने में यानी बूढ़े ठूढ़े आदमियों को बिठाल कर, जो ना तजर्बाकार थे, नौजवान थे, उनमें कुछ मजलूम थे, कुछ आशिक थे, यानी कि अलग अलग तरीके से समझा रहे थे, कुछ ऐसे भी ना तजर्बाकार थे उनमें जिन्होंने अभी यानी कि शमशीर को उठाकर नहीं देखा था, जिन्होंने तलवार को चलाकर नहीं देखा था, जिन्होंने जंग के पैतरे नहीं सीखे थे, वो भी अल्लाह के नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चले आए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मक्के से जालिम आ रहे हैं, तुम्हारे मदीने को नेस्तनाबूद करने के लिए, तुम्हारे वतन को नक्शे से मिटाने के लिए, बताओ कैसे मुकाबला करोगे, कैसे सामना करोगे, कैसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओगे? यानी कि लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये तो नहीं जानते कि हथियार है या नहीं, ये तो नहीं जानते कि तादाद है या नहीं, ये तो नहीं जानते कि हमारे पास इतना लश्कर है कि नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह कसम आपकी मोहब्बत की, जब तक कलेजे में खून की एक बूंद तक बाकी है मोहम्मद पर आँच नहीं आने देंगे, हम लड़ेंगे या रसूल अल्लाह, हम मुकाबला करेंगे, हम सामने रहेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा मोहब्बतों पर तुम्हारी मोहम्मद की जिंदगी कुर्बान है, ऐ लोगों तैयार हो जाओ। तो अर्ज करते हैं सब या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है, मेरे पास तो मकबर भी नहीं है, मेरे पास तो ज़िरा भी नहीं है, मेरे पास तो कोई औलाद भी नहीं है। यही रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं जो जिसके पास हो जो चीज़ उसी को हथियार बना ले, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इसी के हवाले से अल्लाह के नबी के हुक्म को तमाम ने सीने में बसाया। तारीख बतलाती है मेरे प्यारे, उधर से नेज़े आ रहे थे, बर्छियां लेकर आ रहे थे, तलवारें शमशीरें लेकर आ रहे थे, सराय थी, मकफर थे यानी कि ढाले थी, तमाम सामान मुहैया थे। इधर से गुलामा ने मोहम्मद पर कुछ नहीं था, बस हाथों में नबी का दामन था, लबों पर जिक्र खुदा था, सीने में मोहम्मद की यादों की दुनिया बसी हुई थी। कदमों को बढ़ाते हुए आगे निकल गए, किसी को सेटा मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। तारीख बतलाती तैयारियां करने लगे। आज झाड़ियों में जाकर देखो तो बड़े बड़े सेटे होते हैं ना, जो बंसी की तुरकुन्नों में काम आते हैं। आम मिसाल मैंने आपके सामने दे दी, बहुत हल्के हुआ करते हैं। उन मुजाहिदों ने, उन गाजियाने दीन ने इसी रमजान मुबारक के महीने में जो जंग होना थी उसी की तैयारी करने के लिए घरों से निकले। किसी के पास अगर काटने के लिए दराती थी वो ले गया, अगर नहीं तो ऐसे ही उखाड़ने की कोशिश की। अपने घर आकर किसी भी तरकीब से उनको छील कर तीर और कमान
बनाना शुरू कर दिए, सेठों के तीर बनाए। अल्लाह के नबी के साथ लड़ने का हुनर देखिएगा, बगैर तलवार के लड़ रहे हैं, बगैर नेज़ों के लड़ रहे हैं, बगैर ढालों के लड़ रहे हैं, बगैर सिलाह के लड़ रहे हैं, बगैर ढाल के लड़ रहे हैं, बगैर मंफर के लड़ रहे हैं। बास काने मोहम्मद आपकी जिंदगी पर तमाम इस दौर के आशिकों की जिंदगानियां कुर्बान हैं। अल्लाह आपके सदके में हम तमाम की भी जिंदगानियों में बहार अता फरमाए। आपने कदमों को आगे बढ़ाया, दीन को जिंदगी मिली। उधर से कुफारे मक्का चले, इधर नबियों के नबी का लश्कर यानी पैगाम पर पैगाम दिए जा रहा है। ओए लोगों, अमन के साथ जिंदगी गुजारो, शांति के साथ रहो, यानी मोहब्बत के साथ रहो, वकार के साथ रहो, किरदार के साथ रहो। अब नहीं माने वो लोग, इधर से मोहम्मद का लश्कर चलता है। कितने थे? सिर्फ 300। सुना था आपने इस्लाम की पहली जंग में कितने गाजी थे? 313। बोलो सुभान अल्लाह। 313 का ये लश्कर जब चला, उधर से लश्कर गफीर है, लश्कर अजीम है, लश्कर जर्रार है, इधर से दोनों आलम का मालिक मुख्तार है। बोलो सुभान अल्लाह। 313 मुजाहिदों को लेकर मैदान बदर के करीब जब अल्लाह के नबी यानी कि जलवा अफरोज हुए, उधर से जालिमों का लश्कर है, इधर से नबियों के नबी हैं, आपके साथ 313 गाजियाने दीन है। अल्लाह के नबी इधर खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी अपने लश्कर की तरफ निगाह को दौड़ा कर कहते हैं, ऐ बारी तला मुट्ठी भर मुजाहिद तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ। ऐ मेरे मौला, यहाँ तक लाने का काम मोहम्मद का था, आगे इनकी इज्जत बचाने का काम तेरा है। अल्लाह के नबी के कदम मैदान बदर के करीब पड़े ना, तो बदर का मैदान ऐसा है, तारीख बतलाती है कि नबी की आमद से पहले पूरी दुनिया में बारिश होती थी, लेकिन कभी मैदान बदर पे एक बूंद पानी का कतरा भी नहीं गिरा था। सूख कर चटक कर अपनी छाती को टटोल कर वो मुर्दार जमीन हो गई थी। जैसे ही अल्लाह के नबी का एक कदम पड़ा, यानी मैदान बदर में हलचल पैदा होती है। जमीन को अल्लाह तो यानी कि कुव्वत तो परवरदिगार ही देता है और कुव्वत अता फरमाता है। मैदान बदर की जमीन चीख कर कहती है, ऐ बारी ताला, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे दाएं बरसता था, तेरी रहमत बाएं बरसती थी, तेरी रहमत आगे बरसती थी, तेरी रहमत पीछे बरसती थी। मेरी छाती यानी चटक चटक कर सूख कर यानी चटियल मैदान की तरह पत्थर की सिल बन गई है। ऐ मौला, तूने आज तक दुआ कबूल किया ना की तेरी मर्जी। आज तेरे महबूब के कदम पड़े हैं, आज मोहम्मद के नूरानी कदम के सदके में मेरे सीने पर रहमत की बारिशें अता फरमा। अल्लाह के नबी की आमद के सदके में मैदान बदर ने दुआ मांगी, वादहुल शरीक की रहमत का दरिया जोश में आता है। अल्लाह ताला इतनी बारिश फरमाता है, इतनी बारिश फरमाता है कि मेरे नबी ने उन सहाबा इकराम को हुक्म दे दिया कि बीच में नेड़ों को बांधना शुरू कर दो। यही रमज़ान था जिसमें जंगे बदर हुई है, यही रमज़ान था जब बात रमज़ान की चल रही है। सहाबा ने बीच में नेड़ों को बांधा, पानी रोक लिया गया। अल्लाह के नबी से अर्ज़ करते साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप किधर का मैदान चलोगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर का नीचे का हिस्सा चुना। किधर का? नीचे का हिस्सा चुना। जालिमों को वो जो आए थे उन्हें ऊपर का हिस्सा मिला। तो अल्लाह के नबी के गाजी जो आपके साथ थे अर्ज़ करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर कीचड़ है, इधर गीलापन है, इधर गिरने का खतरा है, सरकार इधर रहने में परेशानी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, रब जो करता है बेहतर करता है। मोहम्मद ने चुन लिया तो चुन लिया, कहा ठीक है मेरे भाई, तो यही रमज़ान था जिस रमज़ान में बगैर हथियारों के लोग घरों को छोड़कर, बाल बच्चों को सीने से लगाकर, आखिरी मर्तबा मोहब्बत से चेहरे को देखकर, आंखों में आंसुओं का सैलाब भरने के बाद अपनी बीवी का हाथ हाथों में लेकर कह गए थे, अगर जिंदगी सलामत रही तो तेरा शौहर वापस आ जाएगा, वरना तमाम जिंदगी मेरी औलाद को मेरी मोहब्बत के दिल से सुना सुना कर दुआएं देती रहना। छोड़ गया, अगर एक बेटा था एक बेटी थी तो बात चला गया, दो बेटे दो बेटियां थी तब भी बात चला गया, अगर किसी के 3-4 बेटे जवान थे तो वो भी चले गए, बात भी साथ जा रहा है। एक साहबी रसूल ना याद आया, एक साहबी रसूल के एक जंग में 4 बेटे मौजूद हैं, 4 बेटे मौजूद हैं, साहबा इकराम पैर से बेकार हैं। वो साहबी रसूल, साहबा इकराम नहीं, वो साहबी रसूल एक पैर से बेकार है, चल तक बड़ी मुश्किल से पाते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में 4 बेटे दे दिए हैं, सरकार ये लड़ेगा, ये लड़ेगा, ये लड़ेगा, ये भी लड़ेगा, छोटा बड़ा उससे बड़ा सब दे दिए। अब आप भी अल्लाह के नबी की बारगाह में जाते हैं, लकड़ी का सहारा लेकर, पैर को टेक कर नबी की बारगाह में पूछे, अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 4 बेटे तो चले गए, मैं भी रहना चाहता हूँ। वापस से बोलो, या रसूलुल्लाह मेरे 4 बेटे तो चले गए,
मैं भी जंग में लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से देखकर मुस्कुरा कर कहा ठीक है, अगर लड़ना चाहता है तेरी मर्जी। पीछे से साहबी रसूल की बीवी आई, आने के बाद अर्ज करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजूर हैं, जिहाद इन पर फर्ज नहीं है, क्योंकि ये ना कुर्बानी का जानवर अगर ऐसा हो कि जो कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अलग अलग मसले हैं शरीयत के, यहाँ पर भी यही मामला है। या रसूलुल्लाह ये सही सलामत नहीं है, ये माजूर है, चलने से परेशान है, सरकार इन पर यानी कि जंग फर्ज नहीं है, जिहाद फर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा मोहम्मद को भी मालूम है, लेकिन बता मैं इसके जज्बे का क्या करूं, बता इसकी मोहब्बत का क्या करूं, बता इसके शौक का क्या करूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में उस साहबी की बीवी ने अर्ज किया सरकार वापस फरमा दीजिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा तेरी शरीके हयात का मंशा ये है, मर्जी ये है, तेरे 4 बेटे जंग में है, तू घर चला जा। तो वो साहबी की मोहब्बत देखिएगा, नबी के कदमों में आकर बैठ कर अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर मुझ पर जिहाद फर्ज नहीं है वो अलग बात है, सरकार क्या मैं अपाहिज लगना हूं तो अपने पैर से क्या जन्नत की जमीन को रोकने का हक भी नहीं रखता। या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत की जमीन पर चलने के काबिल भी नहीं हूँ? है तो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज की सरकार पर मंजूरी दो। तो अल्लाह के नबी ने उसकी बीवी इसका जाने दे, मानेगा नहीं, जंग नहीं तो वैसे ही घूमता रहेगा, इसको जन्नत में टहलने की तमन्ना। चले गए। यहाँ पर भी ये मामला है, 313 मुट्ठी भर मुजाहिद है नबी की बारगाह में, अल्लाह के नबी साथ में हैं। अल्लाह के नबी से अर्ज करती है या रसूलुल्लाह इधर कीचड़ है, हम कैसे करके लड़ेंगे, सरकार परेशानी होगी। अल्लाह के नबी ने कहा पहले तो वुजू के लिए यानी कि हौज बनाओ और जो पानी है उसको जमा कर लो। पानी जमा कर लिया गया। जब अल्लाह के नबी की हिम्मत साहबा किराम की समझ में आई, क्योंकि जैसे ढाल होता है पानी भी उधरी जाता है, उधर तमाम आ गया, अल्लाह के नबी के यानी कि बनाए हुए हौज में जमा हो गया। अब वो जालिम परेशान है, खुशकी का आलम है, क्योंकि धूप तो निकलना थी उसके बाद में भी, लेकिन इधर कीचड़ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ओए लोगों नमाज की तैयारी करो, वक्त हो गया है। तमाम लोग दौड़ पड़े। अल्लाहु अकबर, बदर के मैदान में देखिएगा आज पहली मर्तबा जिंदगी में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद हुआ था। आज पहली मर्तबा जिंदगी में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई थी। आज पहली मर्तबा नबी की आमद वहां पर हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन आपका गाजी जब अजान देता है, अजान देने के बाद में जब जमात का वक्त आया, अल्लाह के नबी आगे खड़े हो गए। सहाबा किराम का 313 का लश्कर सफों में खड़ा हो गया। मेरे नबी तारीख ये बतलाती है, बड़ा है पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी जब उस मैदान बदर में सजदा कर रहे थे तो अल्लाह इतनी यानी खुशकी नहीं थी, इतना गीलापन था, इतना गीलापन था कि अल्लाह के नबी की पेशानी में उस जमीन की कीचड़ लग रही थी, पानी में सजदा कर रहे थे। मेरे नबी ये मोहब्बत की अदा ये इनायत देखिएगा हम जैसे गुनाहगारों के लिए 313 के लिए बाद नमाज अल्लाह के नबी ने हाथों को उठाकर दुआ की ऐ माबूद हकीकी मैं नहीं जानता कितना लश्कर आया है, ऐ वाली ताला तू आलिमुल गुयूब है, हर खुली और छुपी चीज को जानता है। ये घर छोड़ कर आए हैं, बच्चों से नाता तोड़ कर आए हैं, मौला शरीक हयातों को अपनी अपनी ये छोड़ कर आए हैं, वतन छोड़ा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बेसर हैं, या रब्बुल आलमीन बेज़िरा है, बेमग़फ़र है, बेनेज़ा है, बेभाला है, बेशमशीर है, बेबर्छी है, बेमग़फ़र है, जैसे भी है तेरी बारगाह में है। ऐ बरी ताला अगर ये बंदे यहाँ नाकाम हो गए तो सुन मेरे मौला, आज मोहम्मद हाथों को उठाकर दुआ करता है ऐ बरी ताला ये 313 का लश्कर जो मदीने से मोहम्मद लेकर आया है, इनको फतह अगर तूने ना दी तो क़यामत तक दुनिया में फिर तेरा कोई नाम लेने वाला मौजूद ना रहेगा, तुझे याद करने वाला कोई ना बचेगा। ऐ मौला इस महीने की बरकत से दीने अज़मत दीने रसूल की या रब्बुल आलमीन तू इज्जत रख ले, आबरू रख ले। ऐ मौला मैं वो करता हूँ जो तू कहता है, यहाँ तक तेरे बंदों को लाने का काम मेरा था, आगे इन बंदों की इज्जत बचाने का काम तेरा है। नबियों के नबी ने जब दुआ की तारीख बदलाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सदा आई ऐ महबूब अफसोस मत कर, कल भी तेरा लश्कर जीता था, आज भी तेरा लश्कर जीतेगा। जब जब दीन की जंग होगी तब तब तेरे लश्कर को अल्लाह